Hello, a very good morning to all of you. This is Mrs. Seema from EC and we are going to meet one more superstar. बहुत अच्छा लगता है जो कैंडिडेट्स ने इतने अच्छे स्कोर ला के मिले हैं उनके लिए। तो आज हम दास जैन को मिलते हैं. He is from Surat. Ladies and gentlemen, soon he is going to join and we are going to ask him. He has got an overall band score 7. What a wonderful band score. In a very good morning, Neerja. A lot of students saying good morning. Thank you so much for wishing. Very good morning. It's have a great day ahead, and I'm so happy that many of you join regularly. Keep doing it. Keep doing it. Keep doing it. And it's great to see you that you are learning something from these sessions. It's very important. So we are waiting for Das Jain to join in. Here he joins. There you are. There he. It's lovely to meet. Good morning, Mihir. It's great to have you on as a viewer. All the viewers, you're welcome. And let's talk to, yes, the young man. Good morning. Good morning, ma'am. Can you hear me properly, beta? Yes, I can hear you properly. All right. A very good morning and welcome. Thank you so much for being here in this session. Thank you, ma'am. So, tell me, did you study in English medium or Gujarati medium? Ma'am, I studied in English medium. All right. Okay. So, why did you take an IELTS coaching? That's an important because question. I was not very good at grammar. I was not very good at creating content to write. So I needed help. आपने आइल्स लेने से पहले खुद ट्राई किया था आइल्स ऐसे अपने आप थोड़ा? मैम एक्चुअली मैं कोचिंग मेरे फ्रेंड के साथ आया था. मेरे फ्रेंड को ज्वाइन करना था तो मैं उसके साथ आया था कि ठीक है चल मैं आ जाता हूँ तेरे साथ, अपने चले जाएंगे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा ऐसे. तो मैं वहाँ पे गया और धनंजय चीयर लीडर ऐसे बाजू में बैठने. तो धनंजय सर एक्सप्लेन कर रहे थे सर, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने सोचा मैं ट्रायल ले लेता हूँ. फिर मेरी सिस्टर ने भी बोला हाँ ठीक है कर ले, तो फिर मैंने कर लिया वहाँ पे ऐसे ही ज्वाइन. So that was an accidental IELTS. Yes, ma'am. But it was a very good accident. Thank you. It's always a good experience. And thank you, Dhananjay. He explains so well that cheerleaders joined. But did your friend join or what? Yes, ma'am. He joined. हाँ, तो नीतर वो निकल जाएगा और तू चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा. So both of you joined. Both of you joined. God bless you. All right. So tell me, in the counseling, did you find IELTS easy or interesting? Ma'am, actually I was worried. I was worried about IELTS because I went to college in Bhagwan Mahavir. So everyone speaks Gujarati there. So I was from English medium, but when I was there ना मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस पूरी छूट गई थी क्योंकि वहाँ पे सर टीचर्स भी गुजराती में पढ़ाते हैं. उसके अंदर सब गुजराती मीडियम जैसा ही हो जाता है सारा. तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई थी वो. तो मैम उधर मैं आया तो मेरे को ऐसे थोड़ा सा पहले मेरे को कॉन्शियस फील होता था कि मेरे को टफ पड़ेगा. मैं ये सबसे ग्रामर वगैरह में बहुत पीछे रह गया हूँ, मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है. तो उसके बाद में फिर जैसे सर ने एक्सप्लेन किया और मैंने ट्यूटर टेस्ट पे पहले तो मैं गया था सबसे पहले, क्योंकि मेरे सीनियर्स, मेरे कॉलेज के सीनियर्स सब वहीं पढ़ रहे थे. तो मैं वहाँ पे गया तो उन लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया कि तुषार सर के पास आप ट्यूटर टेस्ट लो. तो तुषार सर ने मेरे को गाइडेंस दिया. तो उन्होंने मेरे को बोला तेरे को डैश ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तेरे को खाली 1-2 वीक तो अच्छे से भी कर लेगा ना तो भी पूरा हो जाएगा. तो सर ने मेरे को पूरा शेड्यूल बना के दिया. आई यूज्ड टू स्टे 6 hours in EEC. I used to attend writing, then speaking, then skill class, and then again writing. Good. So that's really good. So what do you what is your exactly, how do you pronounce your name? Dash. Okay. Like so fill in the blanks. I pronounce properly. Okay. So Dash, it's always like that. Our English का erosion हो जाता है, धीरे धीरे घिस जाता है. If we are not in that in that atmosphere when people around us speak English. So you should not hold yourself guilty on this part.
मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का ऐसे होता है, या तो हिंदी में सब बोलते हैं या तो गुजराती में बोलते हैं. So, at EEC, we have to maintain a level for English. So, do you remember your first day? Yes, ma'am, I absolutely remember my first day. When I entered, it was like a totally new atmosphere because I never seen this many students to be like they are studying there. Because in Bhagwan Mahavir, we don't see students studying. So first I went there, it was like a whole new experience, and it was like there was an eagerness to know. Yes, So that I is went very to important. there was a class going on, New York class. The names are very good and names are very good of classes. So हम वही, it आप makes जहाँ me feel. जाना चाहते हैं उसी के नाम रखे हैं हमने. यस मैम. टोरंटो है, तो मैं पहले न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क है. का था, तो मैं हुसैन सर का क्लास चल रहा था, तो मैं हुसैन सर के क्लास में बैठा. तो मैम मेरे को, मैं बैक बेंचर हूँ, मैं पीछे ही बैठना पसंद करता हूँ, मैं कभी फर्स्ट बेंच पे बैठना प्रेफर नहीं करता. पर उस टाइम पे सर की क्लास मैंने जब अटेंड की ना, मैं लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे आ गया. लवली. See, this is the तो बहुत difference. अच्छा और एक्सपीरियंस. क्या होता है दाश, कि हमारा डोमेन नहीं है. You have done your engineering, right? यस मैम. Yeah. तो engineering तुम्हारा डोमेन है, ये कुछ हटके है. So you are more interested to know कि what is it, and then you are मैम interested to बट challenge yourself. यस मैम. Yes. पर एक्चुअली चीज ये है ना, आइल्स मतलब जैसे सर एक्सप्लेन करते हैं और क्या बोलते हैं, मतलब सर ने जैसे सिखाया वो डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूजफुल था. क्योंकि सर स्टार्टिंग में सर मैम हम लोग वोकैबलरी करते हैं, मतलब एवरीडे हम लोग 5 वर्ड्स लेते हैं, उसके सब वर्ड सर एक्सप्लेन करते हैं, उसका सेंटेंस बना के दिखाते हैं. फिर सर खुद हमारे साथ कोई भी ऐसे या लेटर सर एक्सप्लेन कर रहे हो, रिपोर्ट हो, तो सर पहले खुद उसको करेंगे, उसके बाद हम लोग को एक खुद से करने को देंगे, और उसके बाद ट्यूटर्स मिलके सब कुछ चेक करेंगे. हमारी मिस्टेक्स जो होती है वो हम लोग को ऐसे नहीं बोलते ये तुमने गलत किया. जैसे हम लोग नॉर्मली स्कूल में हम लोग जाते हैं ना, ये गलत किया तो कैंसिल मतलब रॉन्ग करके हमको दे देते हैं और कुछ नहीं करते. बट ईईसी के अंदर मैम मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला ना कि मैं वहां पे जा रहा हूँ, तो मेरे को सब लोग, मेरी एक मिस्टेक है ना मैम, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो वो लोग मेरे को स्पेलिंग बिल्ड करना भी सिखा रहे. Thank you, Hussein, for this. Thank you, Tushar, and thank you, Tutor Desk Help. Surat, proud of you. Right, that's lovely. Now tell me that which is the most challenging module you found? सबसे challenging आपने जब शुरू. Writing was very challenging for me because I can't sit and write. It's okay. Are you a gamer or a sports person? I am a talker. Okay, right. Okay, so you're like me. You love to talk. Okay, yes, ma'am. I like to gossip actually. It's okay. You can come. We can do that. I also like to gossip. So you are much of an extrovert who loves to talk, right? Yes, ma'am. I meet people. तो राइटिंग तो तुम्हारे लिए कठिन होगा कि चुप रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है. So how did you improve your writing? Let the viewers know. Dash, I would love to tell you that there are a lot of students, viewers watching this, and they are trying to get something out of what you're saying. And ये वीडियो के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं. Yeah, अभी कोई काम पे गया होगा, कोई must be busy, but they watch these videos and they take notes on what the candidates say, because you went to the battlefield, you won the war, and you've come. So your each word is very important, right? So please tell the viewers, how did you build your writing from scratch? First of all, I referred to the books of EEC. Like बहुत सारी बुक्स है. टारगेट 7 बैंड था मेरा, तो मैं टारगेट 7 बैंड की बुक को लेके ही रहता था. भले वो क्लास के अंदर सर उसमें से अगर वो दिन नहीं करवा रहे ना, तो भी आई यूज टू रीड फ्रॉम इट. आप लोग के जो सैंपल्स है, स्पेशली आपके सैंपल सीमा मैम टिप्स, तो उसमें आते थे, तो वो हम रीड करते थे. उसके अंदर से वी यूज टू ट्राई कि ये वोकैबुलरी हम ये हमारे सेंटेंस में फिट करें. तो उसके अंदर मैम आप लोग के सैंपल्स वगैरह मैंने बहुत रिफर किए है. और उसके अंदर मतलब मैम काफी पॉइंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि हम लोग का ग्रामर है ना, हम लोग का बहुत वीक होता है. जो मतलब इधर से सूरत से मैम, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का कोई कल्चर नहीं है बोलने का, इंग्लिश का कोई कल्चर नहीं है ज्यादा बात करने का, तो हम लोग को मैम ग्रामर बिल्टअप करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है. लिंकर्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, सारे हर चीज का स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है. तो वो सब में मैम मतलब हम लोग को काफी हेल्प मिला. मेरे ट्यूटर डेस्क हो गए, मेरे को हर चीज के अंदर उन लोगों ने हेल्प किया
कि डैश ये तेरा सेंटेंस ऐसे, ये ग्रामर तेरा बहुत इम्प्रॉपर है, इसके अंदर ग्रामर सही कर तू। और मतलब उन लोगों ने मेरे को वर्ड्स दिए। मतलब उधर मैम ट्यूटर टेस्ट पे एक बहुत अच्छी चीज होती है कि हम सब बैठे होते हैं तो सर हम लोग को वर्ड्स देते हैं और बोलते हैं ये वर्ड्स में तुम लोग को जो दिमाग में आ रहा है ना इसके ऊपर तुम लोग एक एक सेंटेंस लिखो। तो मैम उससे मेरी थिंक करने की प्रोसेस बहुत फास्ट हो गई थी। तो राइटिंग के अंदर मैम क्योंकि सर की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही अच्छी होती है कि क्वेश्चन को देख के आप पैराफ्रेजिंग कर लो, उसके बाद में तुमको आधा कंटेंट तुमको खुद को ही मिल जाएगा, B1 B2 C1 ऐसे पूरा बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन करके, मतलब बहुत बहुत इजी कर दिया था मेरे लिए। वरना मैम मैं पहले सोचूं ना कि मेरे को 250 वर्ड्स लिखने हैं तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि भाई मैं इतनी देर नहीं बैठ पाऊंगा। तो Yeah, लेकिन सर ने it's मेरे को difficult. इतना हेल्प किया कि मैम मेरे को एक वर्ड आता है ना तो मैं एक वर्ड के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिख सकता हूँ, मेरे को सर ने इतना इम्प्रूव किया। Absolutely, absolutely. Well done, well done. So, skill classes, writing classes, regular classes, tutor day skill, all together make your writing better, वेरी पावरफुल मैम। isn't it? You go to all यस these मैम। places, और tutor day skill पे रोज थोड़ा थोड़ा होता है. So, in यस small मैम। dose you are checked. कि इतना पहले लिखो, फिर इतना लिखो, फिर इतना लिखो. It's something like that. Okay. So now tell us, which is the best score you got out of all the modules? सॉरी मैम। आपका स्कोर कार्ड में, रिजल्ट में सबसे अच्छा बढ़िया स्कोर किसका आया है आपका? लिसनिंग। Correct. And you got a 7.5. यस मैम। And how did you do that? Tell me. मैम एक्चुअली ईईसी के अंदर हम लोग को बहुत मैम घर पे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता था मैं। नहीं जैसे करने ही का, घर पे आए नहीं करने का, मैम जब घर मैम पे मैम कुछ नहीं पहले होता बहुत है. तो कैसे हुआ कि मैं मतलब आप लोग के कैसेट्स होते थे, हम लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करने को सर बोलते थे पर मुझसे होती नहीं थी घर पे जाके, क्योंकि सब फ्रेंड्स वगैरह में ही पूरा टाइम चले जाता था मेरा। तो मैम जितना क्लास में मैं टाइम स्पेंड करता था ना उसके अंदर जैसे लिसनिंग का डे होता था तो देट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैम क्योंकि लिसनिंग के अंदर थोड़ा काफी प्रॉब्लम पड़ता है ऐसे जी. सुनने में, क्योंकि उन लोग का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, उन लोग की स्पीड अलग होती है, उन वो लोग वर्ड्स भी मैम बहुत डिफिकल्ट यूज करते हैं, तो True. बहुत प्रॉब्लम्स आती थी उसके अंदर। तो So लेकिन how did you मतलब practice? मैम जैसे ईसी के अंदर ही मैम स्किल क्लास के अंदर हो गया, लिसनिंग के क्लास के अंदर हो गया कि Wow. वहाँ पे कैसेट प्ले, वहाँ पे वो लोग सर प्रोजेक्टर पे लाइक स्मार्ट क्लास के अंदर स्पीकर्स के अंदर हमारा लिसनिंग करवा रहे हैं। तो मैम उसके अंदर जैसे एक्चुअल एग्जामिनेशन में तो हेडफोन मिलता है तो बहुत इजीली सुनाई देता है, बहुत लेकिन हम easy. लोगों ने प्रैक्टिस Yes. लेकिन हमने प्रैक्टिस में कुछ प्रैक्टिस और इतना। होता है और ये एकदम कान के अंदर बोलते हैं, हमको अच्छा लगता हाँ है. मैम हम लोगों ने प्रिपरेशन है ना मतलब गन फाइट के लिए किया था, और एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग को ऐसा फाइटिंग वाज नथिंग, दैट वाज अ थंब फाइट। Correct. Well said, well said, well said. गन गन फाइट टू थंब फाइट पे आ गए हैं, इतना यस मैम। इजी लगा. वेरी गुड. एंड आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स, सी दश वी हैव मेड अ पॉइंट कि सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक लाइब्रेरी चालू रहता है और क्लासेस भी होती हैं. See what we have done at EC, the viewers, especially for the viewers, what we have done at EC, see हमने कभी होमवर्क नहीं किया है, नहीं आपने नहीं मैंने. होमवर्क तो वैसे भी नहीं किया, मार मार के होमवर्क किया है, ट्यूशन में जा जा के होमवर्क किया है, पछाड़ पछाड़ के मारा है, ऐसा सब होमवर्क किया है. तो अभी इतने बड़े हो जाएंगे तो और भी नहीं करेंगे. सो ये चीज दिमाग में रख के व्हाट वी डू इज आफ्टर द रेगुलर क्लास वी हैव अ 2 आवर स्किल क्लास. वहां बैठ के प्रैक्टिस करवा देते हैं, हम छोड़ते ही नहीं है. वहां बैठ के प्रैक्टिस करो. फिर ट्यूटर डेज के योर शेड्यूल इज लाइक फिक्स्ड. Writing class in the morning, then regular class, then 2 hours skill class, then tutor day skill. By the time you are tired, मैंने प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, फिर कम ज्यादा होगी तो दैट इज द रीजन ईसी में बहुत सारे लोगों को 6 आ ही जाते हैं. और अभी तो ईसी ने इतने सारे इंटरव्यूज किए आप जैसे होनहार कैंडिडेट से, दैट 7 इज वेरी कॉमन. एवरीबॉडी थिंक्स 7 तो आ जाता है, बट 7 इज नॉट इजी. But you guys bring it because you practice well. You know what we do in the class? Sit and practice year and then forget. Go home and relax. What was the reading module with you? How you were with the reading? मैम रीडिंग वाज लाइक मेरी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो थी, तो मेरे को बहुत बहुत मतलब अटेंशन चाहिए रहता है रीडिंग के लिए, क्योंकि मैं बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ.
कि मेरा फोकस एक जगह पे रहता ही नहीं है, मतलब यहाँ से आवाज आई ना मैं वहां देखने लग जाऊंगा, या ऐसी मेरे से यही प्रॉब्लम होती थी। तो रीडिंग के अंदर मैम मेरे को सर ने बहुत इजीली बोला था कि पहले एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेना, और उसके बाद में जो तेरा पैसेज है, पैसेज को स्कैनिंग कर लेना ऊपर से कि ये पॉइंट यहाँ पे, उसको खाली अंडरलाइन कर देना। उसके बाद अगर तेरे को ये यूजफुल लगता है ना, उसको मार्क कर दे। फिर उसके बाद तेरे को अगर श्योर हो ना, तो उसका आंसर लिख, और उसके बाद फिर से एक बार पैसेज रीड कर, उसके अंदर तेरे को आंसर मिल ही जाए। तो एक्चुअली मेरे साथ एग्जामिनेशन में भी यही हुआ। मैंने, मैम आप मानोगे नहीं, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मैं इतना वरिड था तो खुद को। 3 घंटा, पर तू 3 घंटा बैठेगा कैसे? मैम वही तो चीज थी। डोंट वरी, डोंट वरी। यू नो माय यंगर सन आल्सो 3 घंटा बैठना, यानी उसको बोला 3 घंटा बैठना। गेम गेम खेलते हैं, गेमर है तो 3 या 6 घंटा बैठेगा। दोस्त के साथ 50 घंटा बैठेगा। पर मॉक टेस्ट, दैट वाज नहीं बैड। होता। यू कुड हैव गॉट और मैम 7.5। दाश यू कुड हैव गॉट। मैं सूरत आ रही हूँ और फिर मैं तेरे को देखूंगी। 7 नहीं, तेरे को 7.5 आराम से आ जाते बेटा। मैम पर मेरा जो था ना, मैं 6 तक का था मेरा। मैं 7 लाया ना, तो मेरे घर वाले वॉज मोर देन हैप्पी। रो पड़े। रो तो नहीं पड़े मैम, बिकॉज ऐसा नहीं हुआ, फिर भी मतलब हम लोग मोर देन खुश थे हम लोग के। नहीं, बट ठीक है सही भाई, है। मेरा 7 आ गया। See, 7 is very good, but you could have got more if you would have given mock test. Ladies मैम and मेरी gentlemen, 7 mock बैकलॉग्स test है। का तो क्या हुआ? अरे See, मैम नहीं पर, IELTS is different. अरे पढ़ाई is बट द थिंग different. इज दैट ना मैम, कि मेरा अगर सीजीपीए 6.5 आ रहा है और उसके बाद मैं आईएलटीएस में मैं 7 लाऊं, तो वो दैट इज अ बिग डील बहुत फॉर मी। दया है ऊपर वाले की। No, but you're so हाँ मैम। honest. You're so sweet. Ladies and gentlemen, he's so honest. He said that he cannot sit for 3 hours. So he did not give a mock test because, पर मेरे को लगा EC और IELTS से तुमको थोड़ा बदल दिया है, थोड़ा फोकस, थोड़ा अटेंशन, थोड़ा सोचना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैम मतलब क्लास के अंदर पहले आई यूज टू नॉट अटेंड एनी क्लासेस, आई यूज टू बंक। मैं ईईसी भी आया ना मैम, तो मैं एक लेक्चर भरता था, मेरे को 5 आवर्स बैठने का सर ने बोला था, क्योंकि सर वॉज लाइक कि तू 2-3 वीक पढ़, तेरे मतलब 2-3 वीक के अंदर यू विल बी एलिजिबल टू ओके, क्लियर आइल्स इजीली। तो भी मैम मैं उसमें भी बंक करता था। फिर मतलब मेरे फ्रेंड है कृष्णा सर करके, जो वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठते हैं, तो ही यूज टू चेक मी कि ये क्लास में बैठा है या नहीं बैठा है। उन्होंने मतलब लाइक ही वॉज पर्सनल टीचर फॉर मी। जिम में पर्सनल ट्रेनर होता है, यहाँ पे पर्सनल टीचर था कि ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये कर रहा है नहीं कर रहा है। वाह। उन्होंने मतलब सो उन्होंने पूरा एकदम इसी तुम्हारे एक्चुअली। पीछे लगा था, हुसैन हाँ सब मैम। पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप इजी, कीप इट अप। एंड इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू टू बी सो ऑनेस्ट। तो रीडिंग में क्या हुआ, चमत्कार कैसे हुआ बताओ? मैम रीडिंग में आइल्स का जो रीडिंग मटेरियल है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब एक्चुअल एग्जामिनेशन से बेटर चीजें ईईसी की बुक में है। तो वो सब मैंने ईईसी की तो पूरी बुक मैंने सॉल्व कर दी थी, पूरी बुक, मतलब उसके अंदर कोई डाउट नहीं था, मैंने पूरी बुक की थी। क्योंकि मेरा रीडिंग वीक था, और मैं ऐसा हूँ ना मैम, मेरे को लगेगा मैं वीक हूँ तो मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं पूरा करूंगा ही उसको। और मैं, अगर मेरे को डाउट होगा तो मैं 100 बार सर को पूछ लूंगा। मेरे को ऐसा है। तो सर ने मेरे को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, और उसके बाद मैं बुक्स रिफर किया, तो मैम मेरे को इतना एडुकेट लग रहा था ना वो, कि अब मेरे साथ कुछ भी आ जाए, मेरे को वर्ल्ड का पूरा टफेस्ट वो भी पैसेज आ जाएगा ना, तो भी आई विल बी एबल टू स्कोर 6.5। Correct. Because you know how to crack it. It is not the यस मैम। passage. It is the approach that you have to learn. What we यस मैम। teach you is not that ये passage समझ में आया, ये word. No, it's the approach we teach you. Because exam में तो पता नहीं कौन सा passage आ जाता है. So how was your exam? By the way, reading exam कैसी थी? मैम बहुत अच्छा गया था, क्योंकि मैम एक्चुअली हुसैन सर के साथ मैंने पर्सनली एक बार लेक्चर लिया था, क्योंकि मेरा रीडिंग वीक था। तो सर ने मेरे को बोला यू डोंट वरी, मैं तुझको टिप्स देता हूँ, तू यू डू इट लाइक दैट। कि सर ने बोला ट्रू एंड फॉल्स नॉट गिवन। मैम मेरे हर 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 ट्रू एंड फॉल्स रॉन्ग होता। नॉट गिवन और फॉल्स तो मेरा हमेशा उसमें तो जंबल ही हो जाता था मैं। उसको बचाने में ट्रू भी गलत हो जाता है। यस मैम, वो उसका मतलब वो उधर मेरी पॉइंट अटक जाता था, उधर पिंड अप हो जाता था मैं, कि उसके आगे मेरे को कुछ दिखता ही नहीं था। मेरा भी होता था, सब रॉन्ग, सब पूरा का पूरा। 6 है तो 6 रॉन्ग, 10 है तो 10 रॉन्ग, 5 है तो 5 रॉन्ग। मुझे कंफर्म मैम गारंटी कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मेरे रॉन्ग आएंगे। हाँ, और मेरा कैसे हुआ था
कि अगर ठीक है चल ये नहीं आ रहा है ना मेरे को आगे करना ही नहीं है, मेरा हो गया खत्म, मेरे को बस अब नहीं करना, मेरा ऐसे होता था। तो लेकिन सर ने मेरे को इतना अच्छा बिल्डअप किया उसके अंदर कि ट्रू एंड फॉल्स नॉट गिवन है ना, तू छोड़ दे, तू पहले ट्रू ट्रू तेरा मार्क कर ले, तेरे को फिर आधा आइडिया उसके अंदर ही आ जाएगा कि इसमें नॉट ये है, ये चीज है या नहीं है। हाँ, तो फिर देखो ट्रू उधर फॉल्स मैं, नॉट गिवन की सबसे बड़ी टिप है ट्रू और फॉल्स ही देखना है, नॉट गिवन नहीं ढूंढना है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन। हाँ ये समझा समझा के हम थक जाते हैं। अब स्टूडेंट नॉट गिवन ढूंढता है, अब नॉट गिवन तो है नहीं। तो मैम उसके अंदर ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, वही तो चीज थी। तो उसके अंदर मेरा काफी अच्छा हो गया। तो मतलब उसके अंदर मेरा रीडिंग वॉज वेरी इजी कि मैंने थर्ड पैसेज पहले किया, सेकंड बाद में किया, फर्स्ट वाला तो मैम मैंने ऐसे रीड किया और मेरे को आंसर्स, मेरे को ऐसा था ये मैंने पहले भी किया हुआ है। आई गेस वो रियल टेस्ट वाली बुक में से था। Okay, आई wow. गेस, मेरे को पक्का So नहीं मालूम है। you are the lucky one, maybe. यस मैम। तो मेरे को Yeah. आंसर्स ऐसे ही पता थे, तो आई वाज लाइक इट इज वेरी इजी, मैंने खुद से ऐसे ही कर दिया। So तो what's your मेरा reading score? मैम 7। Lovely. And what tips you will give to the students for reading? टिप्स ऐसी है कि जो सर वगैरह बोल रहे हैं, कुछ भी अगर छोटी सी छोटी भी चीज है ना, नोट डाउन करो कि अगर सर एकदम छोटी सी चीज भी बोल रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी उसके अंदर। जो भी ठीक। ट्यूटर्स है, जितने भी है ट्यूटर डेस्क है वगैरह सब, और सर खाली एक पैसेज देंगे जो हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं उसको घर जाके सॉल्व करने में, तो वो एक काम करो, ट्यूटर डेस्क पे बैठ के ही कर लो, घर जाके तुम्हारे पे लोड भी नहीं रहेगा। तो Correct. रीडिंग करने से पहले क्वेश्चंस रीड कर लो, जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है, क्वेश्चंस पहले पढ़ लो या तुम पैसेज पहले पढ़ लो, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल नॉट गिवन पे ज्यादा ध्यान मत दो। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इजी होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स में जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं आप कर सकते हो, उसके अंदर रॉन्ग होने के चांसेस ही नहीं है, तो उसमें एकदम केयरफुली करने का। मैंने ऐसे सर ने और बहुत वो था, तो टिप्स, सर जो Well टिप्स देते said. हैं ना वो बहुत यूजफुल होती है। Well said. Thank you, Hussein, for that. Thank you so very much. And thus you appropriately said कि जो नहीं आता है उसको guess करके भी कर सकते हो. Don't waste time. Don't stress yourself on difficult kind of questions. जो आपको जितना हो सके उतना बचाओ. What you did was जो आता था पहले वो AMR में ट्रांसफर करते जाओ. जो नहीं आता है उसमें फिर guess करना पड़ता है. या तो you have to read it again and all, right? But first of all, you should be safe with the answers that you know. Right? IELTS doesn't want you to be perfect, isn't it? Now tell me about your speaking. How was your journey with speaking? Speaking was like, ma'am, very smooth. Speaking, like I said earlier, I am a very talkative person. So it was very easy, but उसमें मेरा कैसा था मैम, मेरा प्रोनाउंसिएशन और मेरा वो थोड़ा वीक था। तो मैंने लाइक तुषार सर स्पीकिंग का क्लास खुद ही लेते थे, तो उनके क्लास में मैं रहता था। तो स्पीकिंग में उन्होंने टिप्स, मतलब हम लोगों ने मैम ऑलमोस्ट, मैंने कितने 50 क्यू कार्ड्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए होंगे। Lovely. 50 क्यू कार्ड्स। और मैम वहाँ पे उधर कैसे होता है कि मेरा खुद का पर्सपेक्टिव अलग होता है और हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो क्लास में एक बहुत अच्छी चीज होती थी कि सबके जो पॉइंट्स है ना वो एक्सचेंज होते थे, क्योंकि सर ने बोला क्यू कार्ड प्रिपेयर करो और हर बंदे का क्यू कार्ड डिस्कस होगा, चीज ये है। तो मैम अगर मेरा पॉइंट कोई मिस भी हो रहा है ना, तो मैं दूसरे का सुन के वो मुझे पता चल रहा है, मैं वो नोट डाउन कर रहा हूँ। Absolutely. That's the wonder of the speaking class. We always tell students attend class. You know, Dash, I will tell you कि आपको जितना आता है उसमें से स्कोर शायद ना आए. So every day थोड़ा थोड़ा लेयरिंग करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा लेयरिंग करना पड़ता है, और ये लेयरिंग खुद पढ़ने से नहीं आता है बेटा। आप जैसे बोला, आप पहले बंक करते थे, फिर आपको क्लास में ऐसे धक्का मार के भेजा, and then you enjoy the class and see the result, an amazing 7. I'm so proud of you. And imagine now you are giving tips कि class में हमको ये करना है. The reason you went to the class and you understood, oh, this is exchange of ideas, this is pooling of ideas, this is comparative corrections that we are doing. It's a comparative correction. If somebody else is speaking, you are half listening to them, but you are checking your own answers. I missed that point, and then you correct it. This is very important. You know what is this called? Analysis. This is very important. Amazing. और मैम एक्चुअली ट्यूटर डेस्क के ऊपर जब स्पीकिंग होता था, ऐसे यूजुअली मैंने ये सिस्टम कहीं पे भी नहीं दिखा। मेरे बहुत सारे दोस्त, हम सब प्लान कर रहे हैं कि हमको अब्रॉड ही पढ़ना है, तो मैम मैं अकेला, मतलब मेरे ग्रुप के अंदर हम 2-3 लोग ही थे जो ईसी में थे। तो उसमें भी कैसे हुआ मैम कि मेरे एग्जामिनेशंस आ गए, तो मैं उन लोग के टाइम पे नहीं जाता, मैं वीकेंड क्लास अटेंड करता था
तो वीकेंड क्लास में भी अच्छा रिवीजन हो जाता था. बट मैम अभी स्पीकिंग की बात कर रहे थे, इसलिए ये ट्यूटर टेस्ट पे मैम रोज स्पीकिंग भी हो जाता. जी बेटा. स्पीकिंग सर लेते हैं तो उसके अंदर भी काफी अच्छा रिवीजन हो जाता था. उसके अंदर हमारा ग्रामर वो चेक कर लेते हैं, कंपैरिजन हो जाता था कि ये पहले है. सर टिप्स देते थे कि खुद को रिकॉर्ड करके सुन लो. तो उसके बाद क्या है मैम, उसके बाद बहुत अच्छा हो गया. और सर हमको बोलते थे स्पीचेस सुनो लोगों की, या नेटफ्लिक्स देख लो, क्या कोई सीरीज देख लो, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगा कि आपको कैसे वर्ड्स कहाँ पे यूज करने हैं. और स्पीकिंग में क्या है, दोज हु आर टॉकेटिव लाइक अस, तो वो ऑफ ट्रैक जल्दी चले जाते हैं. दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बोलते ही नहीं है और एक जो बोलते हैं तो गलत बोलते हैं. दोनों प्रॉब्लम वाले हैं. तो यू नो ट्यूटर डेस्क हेल्प tells the first one to speak and tells the second one to speak correctly, and that is very important as a tutor there. So you are very happy with your studies at EC. So do you recommend people for for IELTS? EC का नाम लेते हैं. एब्सोल्युटली रिकमेंड मैम. मेरे खुद के मतलब मैं फ्रेंड्स है ना, जो मैं उनको पर्सनली लेके गया हूँ यहाँ पे एडमिशन करवा लो. क्योंकि मैम एक्चुअली टीचिंग को साइड पे रखते हैं अभी. टीचिंग के बाद का जो एडमिशन्स की बात कर लेता हूँ मैं, तो एडमिशन्स ऑफिस के अंदर कृष्णा मैम है और दूसरे सर है, प्रशांत भैया है. तो मैम उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है ना, क्योंकि मैम कॉलेजेस बैठ के ढूंढना इज वेरी टफ. वेरी टफ. क्योंकि मैं अभी भी कर रहा हूँ मैम. मैं उधर ईईसी में गया मैम. उन लोग को तो क्या है, दे डू इट एवरी डे, सो दे नो एवरीथिंग अबाउट इट. क्योंकि मैम मैं उनको मेरा सीजीपीए और आईएलटीएस का स्कोर बोल दूं ना, दे आर लाइक तेरे लिए ये कॉलेज ओपन है, तेरे लिए अच्छा ऑप्शन है, तेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ये रख वो रख. तो मैम आफ्टर सर्विसेज जो है टीचिंग के बाद की, इवन दैट इज लाइक टॉप नॉच. True. तो And do you know, Dash, now in this situation of pandemic, हमने Zoom पे counseling चालू किया है. You have got a Zoom ID, so you can directly meet Preksha ma'am, Ruxana ma'am, other counselors. You can talk to them because you know अभी कहाँ जाना, घर वाले बोलते हैं नहीं जाना, because there is a fear. So we have started a Zoom one-to-one ID where you can sit and get yourself counseled. So you can even, ladies and gentlemen, use those services. What a wonderful talk. I enjoyed talking to you. You're such a wonderful human being. चेंज नहीं होना कभी, ऐसे ही रहना, इतने ऑनेस्ट रहना. सामने वाला लोग यू नो बहुत सब लोग इतने ऑनेस्ट नहीं होते हैं. यू आर सच अ वंडरफुल गोल्डन हार्ट एंड आई लव टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच दाश एंड गॉड ब्लेस यू. और आप जल्दी जल्दी कनाडा जाइए. कनाडा जाना है, करेक्ट? You are going to be a very sweet boy who will get a lot of jobs because you are very sweet and you talk a lot. जो ज़्यादा बोलते हैं उसको अच्छी jobs मिलती है. And tell your parents I'm really proud of you. You are a wonderful human being. Enjoy your life. Bye bye. Thank you. Bye. God bless. So, ladies and gentlemen, what a wonderful conversation with Dash, and he got a 7 overall. And बहुत अच्छी बात की है. वो आपकी तरह धीरे धीरे सोचता था कि कभी क्लास बंक किया आ गया. Then he realized that studying is very. Come to us and get IELTS good scores, and also after IELTS services also for the visas. Thank you all so much. Good day and take care.